بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ کیا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتے ہیں۔ عمومی طور پر جب قادیانیوں سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر تاحال اور قیامت تک آنے والے تمام علماء کا اس بات پر اجماع تھا، ہے اور رہے گا کہ اس آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ بخاری، مسلم، تمام صحاح اور کتب احادیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو عطا نہیں کی جائے گی۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ المختصر یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کا قائل ہوتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم صرف اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا قادیانی واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ قادیانیوں کے عہد بیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ قادیانیوں کے خلیفہ کو بیعت لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور حال ہی میں یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی کی گئی تو اس بیعت میں بھی یہی جملے ادا کیے جاتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتا ہوں۔ I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatam al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. سوال یہ ہے کہ جب قادیانی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قادیانی اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔ یہ میرے سامنے اس وقت تفسیر بیان فرمودہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس تفسیر میں صفحہ نمبر 384 جلد نمبر 6 سورۃ المومنون تا سورہ فاطر، اس جلد نمبر 6 میں جہاں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے حوالے سے تفسیر کو بیان کیا گیا، وہاں مرزا قادیانی کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ نے جب کبھی بھی خاتم النبیین کے کلمات کی وضاحت کی ہے تو وہ اسی بات کو بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس سے بھی عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی بعثت اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہو چکی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور قیامت کے قرب میں آپ دوبارہ آسمان سے زمین کی طرف نزول فرمائیں گے۔ تمام تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ اسی لیے عہد صحابہ میں جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اسود انسی کو عہد رسالت میں دعوی نبوت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسیلمہ اور اسود انسی کو کذاب قرار دیا۔
रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 8 में जब आप एक गलती का इज़ाला जब आप इसका मुताला करते हैं तो सफ़ा नंबर 206। अब हम देखते हैं कि एक गलती का इज़ाला में किस तरह से मिर्ज़ा क़ादियानी ने ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ की तशरीह की है। मिर्ज़ा क़ादियानी की जमात में एक शख्स पर एक मुसलमान ने एतराज़ किया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने तो नबी होने का दावा किया है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो उस शख्स ने जवाबन कहा कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने नबी और रसूल होने का दावा नहीं किया। मिर्ज़ा क़ादियानी ने एक गलती का इज़ाला के नाम से एक किताब अपने अक़ीदतमंद के रद्द में लिखी और कहा कि चुनाचा चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहिब पर एक मुखालिफ की तरफ से यह एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैअत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया। हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक़ यह है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल, मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माने की निस्बत भी बहुत तसरीह और तौज़ीह से ये अल्फाज मौजूद हैं। बराहीन अहमदिया में भी जिसको तबाह हुए 22 बरस हुए, ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं हैं। चुनाचा वो मुकालमात इलाहिया जो बराहीन अहमदिया में शाये हो चुके हैं, उनमें से एक ये वहीउल्लाह है। अब आप देखिए कि कुरान मजीद की वो आयत मुक़द्दसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। मिर्ज़ा क़ादियानी ने यह लिखा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये वही मेरे ऊपर नाजिल हुई है। मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा कि उनमें से एक ये वहीउल्लाह है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। और लिखा कि देखो सफ़ा 498 बराहीन अहमदिया, इसमें साफ़ तौर पर इस आजिज़ को रसूल करके पुकारा गया है। गोया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने कुरान की इस आयत के बारे में कहा कि ये मेरे ऊपर नाजिल हुई है, और इस आयत में जो रसूल का कलमा ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये रसूल का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा, फिर इसके बाद इसी किताब में मेरी निस्बत ये वहीउल्लाह है, जरल्लाहु फ़ी हुलल अंबिया, यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में देखो। बराहीन अहमदिया सफ़ा 504। फिर इसी किताब में इस मुकालमे के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सूरतुल फ़त्ह की वो आयत मुक़द्दसा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ज़िक्र करते हुए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। ये कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा है। मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि यह आयत मेरे ऊपर नाजिल हुई और कहा कि इस वही में मेरा नाम नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। उसके बाद मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा कि इसी तरह बराहीन अहमदिया में और कई जगह रसूल के लफ्ज़ से इस आजिज़ को याद किया गया है। सो अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी किस तरह से आ सकता है, तो उसका जवाब यह है कि बेशक उस तरह से तो कोई नबी नया हो या पुराना नहीं आ सकता। जिस तरह से आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माने में उतारते हैं और फिर उस हालत में उनको नबी भी मानते हैं, बल्कि 40 बरस तक सिलसिला वही नबूवत का जारी रहना और ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ जाना आप लोगों का अक़ीदा है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि मसीह अलैहिस्सलाम की आमद सानी से अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में तवातुर के साथ ये अहादीस मनक़ूल हैं और कुरान मजीद से ये बात साबित है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हयात हैं और आप नुज़ूल फरमाएंगे और क़ुर्ब क़यामत में दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। आप देखिए कि कुरान मजीद में इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा, वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, और इस आयत में एक पेश गोई है जिसकी हमारे मुखालफों को ख़बर नहीं, और वो ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फ़रमाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेश गोइयों के दरवाज़े क़यामत तक बंद कर दिए गए और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान
नबी के लफ्ज़ को अपनी निस्बत साबित कर सके। नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गईं मगर एक खिड़की सीरत सिद्दीकी की खुली है, यानी फ़ना फिर रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है। इसलिए उसका नबी होना गैरियत की जगह नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात से नहीं बल्कि नबी के चश्मे से लेता है, और ना अपने लिए बल्कि उसी के जलाल से। इसलिए उसका नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है। उसके माना ये हैं कि मोहम्मद की नबूवत आखिर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मोहम्मद को ही मिली, गो बरूज़ी तौर पर, मगर ना किसी और को। गोया कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को मोहम्मद सानी कहा, और इसी किताब में सफ़ा 208 पर आगे चलते हुए मिर्ज़ा कादियानी ने मज़ीद लिखा कि गर्ज़ मेरी नबूवत और रिसालत बाएतबार मोहम्मद और अहमद होने के है, न मेरे नफ्स की रूह से, और ये नाम बहैसियत फ़ना फिर रसूल मुझे मिला, लिहाजा ख़ातमुन नबिय्यीन के मफ़हूम में फ़र्क ना आया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने से ये फ़र्क ज़रूर आएगा। फिर मिर्ज़ा कादियानी ने एक गलती का इज़ाला सफ़ा नंबर 209 पर लिखा। इसमें असल भेद यही है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मफ़हूम तकाज़ा करता है कि जब तक कोई पर्दा मुगायरत का बाकी है उस वक्त तक अगर कोई नबी कहलाएगा तो गोया उस मोहर को तोड़ने वाला होगा जो ख़ातमुन नबिय्यीन पर है। लेकिन अगर कोई शख्स उसी ख़ातमुन नबिय्यीन में ऐसा गुम हो कि बबाई से निहायत इत्तिहाद और नफ़ी गैरियत के उसी का नाम पा लिया हो और साफ आईना की तरह मोहम्मदी चेहरे का उसमें इनेकास हो गया हो, तो वो बग़ैर मोहर तोड़ने के नबी कहलाएगा, क्योंकि वो मोहम्मद है गो ज़िल्ली तौर पर, बावजूद इस शख्स के दावा नबूवत के जिसका नाम ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद रखा गया, फिर भी सैयदना मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन ही रहा, क्योंकि यह मोहम्मद सानी उसी मोहम्मद की तस्वीर और उसी का नाम है। मगर ईसा बग़ैर मोहर तोड़ने के नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी नबूवत एक अलग नबूवत है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद को नबी कहा, रसूल कहा, मोहम्मद कहा, मोहम्मद सानी कहा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबूवत का सरीह तौर पर दावा किया। याद रखें कि हदीस में वज़ाहत के साथ ये बात ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, नबूवत के सिलसिले को मेरे ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया है। एक और मकाम पर फरमाया कि ख़ुतिमा बियन नबियून, मेरे ज़रिए से नबियों के सिलसिले को मुकम्मल कर दिया गया है, लिहाजा अब नबूवत के दावे की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बात को कंक्लूड करते हुए ख़ुलासतन मैं अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं। जिस तरह से किसी ख़त पर मोहर लगा दी जाती है, उस ख़त में न किसी चीज़ को दाखिल किया जा सकता है न बाहर निकाला जा सकता है। जिस तरह किसी मुआहदे पर मोहर लगा दी जाती है कि उस मुआहदे में अब न इजाफ़ा होगा न कमी होगी, इसी तरह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला नबूवत को अपनी मोहर से ख़त्म कर दिया है और मुकम्मल फरमा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जिन दो लोगों ने दावा नबूवत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कज़्ज़ाब कहा, दज्जाल कहा, और क़यामत तक आने वाले लोगों के बारे में ये पेशन गोई फरमा दी कि 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं जो दावा नबूवत करेंगे। इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद तफ़सीली गुफ्तगू हम आइंदा आने वाले एपिसोड में करेंगे, जिसका मौजू होगा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई हैसियत। बस ये वाज़े हुआ कि कादियानी ख़ातमुल अंबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हकीकी तौर पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया तस्लीम नहीं करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का इनकार कुफ़्र है, और जो शख्स दावे नबूवत करे उसके कुफ़्र में शक करना, ये अमल भी इंसान को दायरा इस्लाम से नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ख़ारिज कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। डॉक्टर उमैर को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।